Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today in this video we are going to discuss chapter number 1, that is two big states and standard, it is of standard 7 social science. Okay, so in this video we had already discussed about first video, so that is the second video of chapter number 1, two big states. Okay, in the previous video we had already discussed about Harshvardhan's life, his route to throne, and even we have already discussed about the administrative system of Harshvardhan's empire. Now in this chapter, in this video, we are going to discuss about Harshvardhan's empire and the different universities and how he deal with his empire. Okay, so that is the first point, that is Nalanda University. So King Harsh extended all possible assistance of Acharya Shilbhadra and made Nalanda into a world famous university. So again it's very important that with the help of Acharya Shilbhadra, very important that with the help of Acharya Shilbhadra he extend करना मतलब spread करना. So extend matlab spread, okay, with whose help, so Acharya Shilbhadra's help, and made Nalanda. Nalanda is a university till even present time also we can have, okay, to a world famous university. So with the help of Acharya Shilbhadra, हर्षवर्धन ने जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको वर्ल्ड फेमस बनाई. द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यूज ऑफ 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance. Now see how that university was performed at that time. So with the revenues collected by हर्षवर्धन of how many villages? So 100 villages. ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो कैसे रूल करते थे, हाउ मेंटेन होता था, तो 100 villages थे, वो 100 villages के जितने भी रेवेन्यूज़ थे. Now what is revenues? So revenues means taxes. Okay, जो टैक्स पे करते थे वो 100 विलेजेस के जो टैक्स होते थे उससे वो मेंटेन होती थी. बाय whom? So by king. To upkeep the maintenance, मतलब to maintain the maintenance, it takes like it deals with the 100 villages taxes. Renovate मतलब famous, writing here famous. So famous chemist. केमिस्ट मतलब आज भी आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट लिखा होता है, मीन्स कनेक्टेड विद द मेडिसिन, फार्मर से. आचार्य नागार्जुन हु प्रूव्ड द आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी एस कुड बी यूज एज अ मेडिसिन ऑल्सो बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी. नाउ आचार्य जो नागार्जुन है उसने क्या प्रूफ किया था, उन्होंने प्रूफ किया था कि आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी, वो तीनों की एश मतलब जिसको हम राख बोलेंगे, मिट्टी बोलेंगे, वो तीनों को मिक्सड करके यूज़ करें. सो इट इज़ वी कैन टेक एज अ मेडिसिन. तो वो किसने प्रूफ किया था? आचार्य नागार्जुन ने प्रूफ किया था. एंड ही वॉज ऑल्सो बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी. और वो आचार्य नागार्जुन थे, वो कौन सी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे. हु वॉज आचार्य नागार्जुन? सो ही वॉज फेमस केमिस्ट. And what he had proved? So he had proved that iron, arsenic and mercury, if we put all these things together and form the S, so this S will use as a medicine. Who proved that? Acharya Nagarjuna. Who was he? So he was a famous chemist and he belonged to which university? So Nalanda University. And Nalanda University was extended world famous. By whom? So by King Harshvardhan. With whose help? So Acharya Shilbhadra. Okay. Now here in this slide you have a picture of Nalanda Vidyapit. Vidyapit matlab university. Okay, so you have the picture of Nalanda Vidyapit, or we can say Nalanda University. Now life of people. So if we are talking about the life of people during the period or during the era of Harshvardhan, okay, so how the life of people and what was the changes and even how they lived. So see,
Information about the religion of King Hertz is available from the writings of Chinese traveler Yuan Shang. Very important, most important thing, because as the study forward, okay, as the study will going forward, you have the different traveler of different countries. So how we get the information about the region of King Hertz? So we get the information about the writings of which country's traveler? So Chinese traveler. And what was the name? Yuan Shang. Very important thing, okay, don't forget. So यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है that Yuan Shang belong to which country? So Chinese country, and he was a traveler of Chinese country, and the name is name was Yuan Shang. Towns and villages of that time were fortified and had huge gateways at their entrance. Fortified करना मतलब फोर्ट, मतलब जिसको आपको पता है, जिसको हम किला बोलते हैं, वो कंट्रोल करना, मतलब ये जो सपोज़ ये एरिया है, ओके, तो उसको वो लोग क्या करते थे, फोर्ट से कॉर्डन कर देते थे, ओके. तो एंड ह्यूज गेटवेज आर देयर इन द एंट्रेंस. सपोज ये एंट्रेंस गेट है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एंट्रेंस होगा वो यूज़ होगा, मतलब ह्यूज एंट्रेंस, ह्यूज मतलब वेरी बिग. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स. एक सोसाइटी है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 4 ग्रुप्स में. While the पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिज वॉज नॉट प्रिविलेंट एट दैट टाइम. पर्दा सिस्टम मीन्स यू नो वेरी वेल, इफ any woman or any female is there and suppose she wants to go in front of the male, okay, so compulsory उसको अपना जो फेस है वो पर्दा में कवर करना था, ओके, तो वो सिस्टम वहाँ पे नहीं थी. एज वेल एज इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम मीन्स कोई एक कास्ट है तो वही कास्ट वाले वो कास्ट में मैरिज करेंगे. इंटरकास्ट मतलब एक दूसरे की दूसरी कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते. द कस्टम ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीग्रामी हैड स्टार्टेड बाय देन. तो उसके बाद वो स्टार्ट हुआ क्या, सती. सती मैंने आपको पहले बताया ही है कि कोई एक सपोज़ कोई फीमेल है, वुमन है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको क्या करना है कि अपने हस्बैंड की जो जलती हुई फायर है, चीता, उसके अंदर जंप करके अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना है, वो. एंड चाइल्ड मैरिज मतलब अर्लियर वी कम टू नो कि जो चाइल्ड मैरिज है मतलब जब बच्चे एकदम छोटे, क्रेडल में, क्रेडल मतलब घोड़ियों, ओके, इन गुजराती, तो वो क्रेडल में से ही उन लोगों की मैरिज है वो फिक्स्ड कर दिए जाते थे. एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत कम एज में उन लोगों के मैरिज हो जाते थे. तो वो क्या हुआ, तो हर्षवर्धन के बाद वो जो कस्टम्स है, कस्टम मतलब रिवाज, हमारे जो रेगुलेशंस, और हम लोग ऐसे बोले कि जो भी कस्टम्स है मतलब जो हम लोग परफॉर्म करते हैं डीड्स, वो उसके बाद स्टार्ट हुए. किसके बाद, तो हर्षवर्धन के रूल के बाद स्टार्ट हुए. द लोकल डाइट मतलब वो क्या खाना खाते थे, सो कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. बेसिकली दे टेक द लोकल डाइट एज मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्शन, इवन वीट, rice, fruits and vegetables. So basically that diet, if we are talking about the diet of that people of that time, so milk products, wheat, rice, fruits and vegetables. They wore clean simple white clothes. wore मतलब पहनना, past form of wear. So clean, very important, hygienic clean cloth पहनते थे, but simple white color के थे. Men wore dhotis and women wore saris. If we are discussing about men, so the cloth wearing style or wearing sense, तो men क्या पहनते थे, धोतीस, while women wear saris. Their ornaments means women के जो ornament थे वो क्या थी, ring, bangles, bracelets and necklace. Okay, were made from flowers. It was not made from iron or gold or silver. It was they were made from flowers. वो flowers से बने हुए थे. क्या क्या ornaments, तो rings, bangles, bracelets and necklace. Okay, वो ornaments थे, but वो किस से बने थे ornaments, तो flowers से बने थे. Chess and games of dice were popular means of entertainment.
जो चेस है वो, और डाइस मतलब हम लोग जो पासा बोलते हैं, वो पॉपुलर गेम थी एंटरटेनमेंट की। इवन एक्रोबेट्स एंड कंजूरर्स वंडर्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज टू एंटरटेन पीपल। एक्रोबेट्स, और वो पता है आपको, जो ऐसे 2 पॉल्स होते हैं, उसके ऊपर एक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग जैसा होता है, वो बैलेंसिंग करके वो उसके ऊपर चलते हैं। स्ट्रिंग तो नहीं बोल सकते, रोप, जिसके ऊपर वो बैलेंसिंग करके चलते हैं। सो एट दैट टाइम दे वंडर्ड from one place to another place for the entertainment of people. So that is very important if we are talking about the game. So chess and dice were the popular game. एंड ये जो एक्रोबेट्स और कंजरर्स थे वो क्या करते थे, मतलब जो 2 पॉल्स होते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर रोप होता है, वो क्या करते हैं, बैलेंसिंग करके उसके ऊपर चलते थे। एंड दे वंडर्ड फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। Now if we are talking about the occupation, so farming and animal husbandry, मतलब animal को domesticate करना, were the main occupations of the people. Again very important, that give the name of the major occupations of the people of that time. So farming and animal husbandry. Land revenue was 1/6 of the production. Again it's very important. Suppose आपका जो production है वो पूरे year में 600 रुपीज़ हुआ, सो ये 600 का 1/6 पार्ट मीन्स ₹100 यू हैव टू पे एज द लैंड रेवेन्यू। मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग, 600 आपका टोटल जो है वो प्रोडक्शन होकर आपको इनकम मिलती है, उसका 1/6 पार्ट मीन्स ₹100 यू हैव टू पेड एज द लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब टैक्स। आज भी हम लोग लैंड टैक्स भरते हैं, पे करते हैं, फिर हाउस टैक्स है, बिल टैक्स, वाटर टैक्स है, ऑल द टैक्सेस वी आर गिविंग। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट 1/6 पार्ट दे पेड। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय वैश्य। जो वैश्य पीपल थे वो लोग क्या करते थे कि जो इंटरनल मतलब अंदर का स्टेट्स का एंड इवन इंटरनेशनल ट्रेड थे वो भी वो लोग करते थे। अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगु कच्छ, प्रेजेंट इट इज़ भरूच पोर्ट, वॉज बिल्ट बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन एक हाईवे फॉर्म हुआ था। कहाँ से? सो पाटलिपुत्र से लेके भृगु कच्छ, प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड भरूच। तो पोर्ट है मतलब जहाँ पे शिप को लोड और अनलोड की जाती है। ओके, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, हाईवे जो है वो फॉर्म किया था। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस and commercial transactions if we are talking, so which things were used? So the gold and silver coins were used. Ornaments, statues, ivory. Now what is ivory? तो ivory मतलब जो एलिफेंट है, एलिफेंट के टीथ से बनाई हुई जो ज्वेलरी है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो वो। देन कार्व्ड वुडन पीसीस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना मतलब सेंड करना। जो हमने बोला कि इंटरनल एंड इंटरनेशनल बेस पे ट्रेड होता था, तो वहाँ पे ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज़ है, आइवरी मतलब एलिफेंट के टीथ से बने हुए जो भी आइडल्स है या तो ज्वेलरी है वो बहुत कॉस्टली होती है। सो वो सारा जो है वो एक्सपोर्ट होता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी। और नॉट ओनली दैट बट अलग अलग मटेरियल्स भी क्या होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशंस विथ रोम विच लेड द inflow of gold to India. Now it's again very important thing that from here during the region of King Harshvardhan हम रोम में क्या भेजते थे, तो गुड्स भेजते थे। विच काइंड ऑफ, तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि जो सिल्क मटेरियल्स है, देन आफ्टर ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आइवरी, कार्व्ड वुडन पीसीस है, अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स है, वी आर सेंडिंग टू रोम। और रोम से हमें क्या मिलता था, तो इनफ्लो होता था किसका, गोल्ड का। मतलब रोम से हमें क्या मिलता था, गोल्ड हमें मिलता था। Then after people followed Hinduism, Buddhism and Jainism but were tolerant towards other religions. Basically people जो थे वो क्या follow करते थे, तो Hinduism, Buddhism and Jainism. Now Yuan Sang that we had already discussed कि जो Chinese traveler है वो उसके region में visit करने के लिए इंडिया की आता है। What was the time period? So 629 to 645 C. C मतलब common era.
The Chinese traveler Yuan Sang visited India during Hers region and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. We had already discussed about Nalanda University. तो वो इंडिया में 5 ईयर तक रहता है और नालंदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उसने क्या स्टडी किया? बुद्धिज़्म. बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, सो हर्षवर्धन का हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड वो मीट होती थी पर ईयर. ओके, ईयर में 1 टाइम होती थी, देन 5 ईयर्स में भी रिलीजियस मीट होती थी. तो यहाँ रहकर, मतलब नालंदा में रहकर यूएन सांग ने 5 ईयर्स तक क्या स्टडी किया? सो बुद्धिज़्म है वो स्टडीड किया. नाउ इन दिस स्लाइड यू हैव द फोटोग्राफ ऑफ यूएन सांग एंड इवन रूट टू यूएन सांग इंडियाज टूर. मतलब वो चीन से लेके कहाँ तक यू कैन सी हियर. ओके, ये जो लाइंस है वो यू कैन सी हियर कि यहाँ से एंटर होके पूरे मतलब यहाँ तक, ये जो मथुरा है, कनौज है, हरिद्वार है, देन हियर पाटलिपुत्र, वैशाली, ओके, ये भरूच है, वो सारा ऑलमोस्ट पूरे इंडिया उसने क्या किया था? ट्रैवलिंग किया था. सो दैट इज़ द रूट ऑफ यूएन सांग टू इंडिया. Yuan Sang stayed India for 15 years and visited different place. 5 years वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रहता है. ओके, वाई? टू स्टडीड बुद्धिज़्म. एंड टोटल कितने ईयर्स रहता है? तो 15 ईयर्स. एंड ही विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस. ही हैड डिस्क्राइब द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट टाइम. सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल मतलब कैसे रूल एडमिनिस्ट्रेशन वो वर्क होता था, एंड रिलीजियस कंडीशन मतलब धर्म जो था, रिलीजन था, वो कैसा था. ईच एंड एवरीथिंग ही डिस्क्राइब्ड एंड नोटिस्ड. In 645 CE, he returned to China via Central Asia and took him with many books, relics and statues. Now, after 15 years, in 645 CE, he returned to China. And what was the route? So, via Central Asia. And with him, he took so many books and relics, statues, all that thing. During his stay, he attended the 6th Buddhist religious congregation in Prayag. That is also very important कि वो कौन सी बुद्धिस्ट मीट में प्रेजेंट रहता है, या तो हम लोग बोलते हैं कि अटेंड की थी, तो 6th नंबर की. ओके, विच वॉज हेल्ड इन प्रयाग. हमने पहले ही देखा था कि एवरी 5 ईयर में वो क्या होती थी? एक मीट होती थी विच वॉज कंपल्सरी. वो कहाँ पे होती थी? प्रयाग में. तो 6th बुद्धिस्ट जो रिलीजियस मीट हुई, मतलब 6th नंबर की, वो किसने अटेंड की थी? तो यूएन सांग ने अटेंड की थी. ओके, देन आफ्टर यूएन सांग हैज़ नोटेड दैट. क्या उसने नोटेड किया? सो देयर वर 100 बुद्धिस्ट मठ इन हर्ष किंगडम. टोटल कितने मठ बनाए थे? तो 100. किसने? हर्षवर्धन ने. पीपल लिव्ड अ सिंपल, पायस मतलब पवित्र, एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड मोरल कंडक्ट एंड जस्टिस. दे वर लिविंग पीसफुल एंड सिंपल लाइफ, and their life was based on the rules and good morals of justice. Okay, matlab they have the good morals and we can say sense, and they even follow justice. Cheating and breach of promise were considered sinful. चीट करना मतलब किसी को चीट करना, एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस मतलब तोड़ना प्रॉमिस, दे वर कंसिडर्ड सीनफुल. सीन मतलब पाप, उसको वो लोग किस में कंसिडर करते थे? पाप में कन्वर्ट करते थे. मीन्स दे लिव द पायस मतलब पवित्र लाइफ वो लोग जीते थे. एंड टोटल हाउ मेनी मठास और मठ वर देयर? सो 100 बुद्धिस्ट मठ वर देयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन. I hope it is clear to you, and still you have any doubt, then you can write in comment box, so I will try to solve your doubt. And thank you for watching the video. Have a nice day.